آپ نے کیا لینا بیٹا؟ یہ والے کام۔ میڈیا کو اتنا ٹائم دینے کے بعد آج یہ میرا حال ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گاڑی کا ٹائر کھول رہا ہوں، پینچر لگا رہا ہوں۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹکیوں کا اڈا لگاؤں گا، لیکن حالات انسان سے بڑا کچھ کروا دیتے ہیں، تو میں مجبوری میں جو ہے وہ مجھے ٹکیوں کا اڈا لگانا پڑا۔ میرے گھر کا کچن بند ہو چکا تھا، 10 ماہ تقریباً میں نے 9 سے 10 ماہ اوبر پہ بائک چلا کے اپنے گھر کا کچن جو ہے وہ مینیج کیا ہے۔ جس طرح سے ورکرز کو مالکان نے جس رونق سے نکالا ہے، جس طرح ان کو ذلیل کیا گیا، جس طرح سے ان کے واجبات جو ہیں وہ نہیں پے کیے گئے۔ ہر جگہ پہ پالیٹکس چلتی ہے، اپنے بندے لے کے آئیں، اپنے بندے کریں، کام کرنے والے بندے کو جو ہے نا وہ پریفر نہیں کرتے لوگ۔ آج کل جو ہے کہ آپ جتنا کسی کے ساتھ بنا کے رکھیں گے یا چاپلوسی کریں گے، میں کہوں گا وہی لوگ کام کرتے ہیں جو کام کرنے والے بندے ہیں، پروفیشنل بندے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ہے اس فیلڈ میں۔ تو ہم نیوز میں بھی ایسے ہی ہوا، ہم سیاست کی نظر ہوئے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ٹیم لے کے آنی تھی، تو وہ اپنی ٹیم لے کے آئے، بیورو چیف صاحب تھے جنہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ہم نے اپنی ٹیم لے کے آنی، ہم چلے گئے۔ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے کال آتی ہے HR سے کہ جی آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، تو لہٰذا آپ جو ہے اب دوبارہ جو ہے وہ نہ آئیے گا۔ وجہ پوچھی کہ کیوں نکال رہے ہیں، وجہ بھی کوئی نہیں۔ جو مجھے لیٹر دیا گیا اس لیٹر میں بھی کوئی ایسی چیز مینشن نہیں ہے کہ مجھ پہ کوئی الزام لگایا جائے۔ ہم نے پروٹیسٹ کیا تو جب ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے کے قریب تھے تو نہ جانے کہاں سے کال آئی، کہاں سے کال چلی، ہمارا پروٹیسٹ رکوا دیا گیا، مطلب اٹھا دیا گیا، جی آپ اٹھ جائیں جی۔ کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس نے اپنے ورکرز کو نکالا نہیں۔ اخبارات بند ہو گئے، وقت اخبار بند ہوا، اس کے بعد آپ کے سامنے انقلاب بند ہو گیا، تو چینلز بھی بند ہوئے، اخبارات بھی بند ہوئے، ایڈز کم ہو گئے، ورکرز نوکریوں سے گئے، تو بہت برے مشکل حالات ہیں میڈیا کے لیے اس وقت۔ کاروباری معاملات میں اخلاقیات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ جس کو ٹھوس کہہ سکیں، یعنی اخلاقیات ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو آپ قانونی طور پہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا۔ تو یہ جو اخلاقی ویلیوز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، نظریاتی طور پر وہ اٹھائے گا آواز جو صحافی ہوگا، جس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، لیکن جو صحافی نہیں ہے، جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کسی ایک یعنی کاروباری کسی گروپ کے ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا اینٹی گورنمنٹ جانا یا پرو گورنمنٹ ہونا، اس کا یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ یہ جو مخالفت ہو رہی ہے، یہ حمایت ہو رہی ہے، یہ کسی اصول کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، کسی نظریے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، یا یہ ایکچولی PR ہو رہی ہے، یہ بزنس ہو رہا ہے۔ میڈیا پہ جو دور گزر رہا ہے تو وہ یہ ابھی سے شاید نہیں شروع ہوا، یہ پچھلے کوئی 3 سال سے 4 سال سے شروع ہوا ہے، لیکن تیزی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہوئی ہے، اور یہ یہاں پہ نہیں ہے، اوور آل پوری دنیا میں میڈیا اس طرح ڈاؤن فال کی طرف ہے، جو اسپیشلی براڈ کاسٹ میڈیا ہے۔ اتنے برے حالات ہیں کہ ہمارے جو ایکٹیو ورکنگ لوگ ہیں، جو میرے کولیگز ہیں، جو میرے ساتھ میرے سینئر رہے ہیں، یا جو میرے امیڈیٹ جونیئر رہے ہیں، یا میرے ساتھ کولیگ رہے ہیں، میرے خیال میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ گھر بیٹھے ہوں۔ کن ورکرز کو نکال رہے ہو جن کی سیلری 20-20 ہزار 25-25 ہزار آپ دے رہے ہو؟ نکالو ایک اینکر کو جسے آپ 25-25 لاکھ روپے تنخواہیں دے رہے ہو، لگاؤ کٹ ان کی سیلریز میں۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے ادارے پھر چلا پاتے ہیں۔ یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ خبر دینے والے خود خبر بن جائیں گے۔ اب ہم لوگوں کی خبر دیتے ہیں، لیکن ہماری خبر دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری جو مشکلات صورتحال ہے، ہمارے گھر کی جو پوزیشن ہے۔ میں نے افغانستان میں بھی جا کے یہ مطلب کہ گلبدین اقتدار کے ساتھ اگلے مورچوں میں مل کے میں نے بڑے بڑے کام کیے۔ میڈیا کا جب دل کرتا ہے کہ وہ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں مار کے، اور وہ ایک دم میں روڈ پہ آ جاتے ہیں، اس کے بچے بھی اور وہ بھی۔ ہمیں کیا ملا اینڈ پہ؟ یہ ضلالت، بے روزگاری، ہزاروں انسٹیٹیوشن بنی ہوئی ہیں، موبائلوں کے اوپر جائیں دیکھیں کتنے گروپ بنے ہوئے، کبھی کسی کا فون نہیں آیا، کبھی پریس کلب سے کسی کا فون نہیں آیا، کبھی کسی صدر کا نہیں فون آیا۔ میڈیا ایک ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور چوتھا ستون اس وقت یہ ہے جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنا جو ہے نظام چلا رہا ہے۔ میڈیا کے سسٹم سے ہم بہت دل آزاری ہوئی ہے، مایوسی بھی ہوئی ہے۔ میں 1 سال در در بھٹکتا رہا ہوں نوکری کی تلاش میں کہ مجھے نوکری مل جائے،
मगर अफसोस कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस कहाँ गया? मेरी 3 माह की सैलरी वो अभी तक मुझे नहीं मिली। जो बेचारे बाहर धूप में अब खड़े होते हैं या काम करते हैं या वो निकल के देख रहे होते हैं यूनियंस की तरफ, सारे क्लबों की तरफ, तो वो इस आस में होते हैं कि जी हमें हमारे सीनियर्स हैं, वो यूनियन के लोग गए हुए अंदर या नहीं भी गए, वो बात कर रहे हैं, हमारा कुछ हल हो जाएगा। अफसोस कि अभी तक नहीं हुआ। हाँ, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये होना भी नहीं है। जब ये दहशतगर्दी अरूज पर थी, कहीं बम ब्लास्ट होता था तो लोग वहां से कोसों दूर भागते थे, और वाहिद एक कैमरामैन या रिपोर्टर वो लोग हैं जो उस स्पॉट पे पहुंचते थे उसे कवर करने के लिए। हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस फील्ड में। जब शुरू में जब आए हैं तो लोगों को हक़ाइक़ दिखाने के लिए हमने ब्लास्ट कवर किए, प्रोटेस्ट, आग लगी, किसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ, अपनी किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, मतलब अपनी जान की, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी फैमिली हैं, उसकी परवाह किए बगैर हम लोगों ने ये किया कि नहीं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों तक असल हक़ाइक़ जो है ना हम लोग पहुँचाएँ। खुदा की कसम वो बताना गवारा नहीं कर रहे कि यार हम सहाफ़त में थे तो हम क्या काम कर रहे हैं। वो अपना काम नहीं बताना चाह रहे इस शर्म के मारे। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे होते हैं और हम ब्लास्ट की तरफ भाग रहे होते हैं कि लोगों का असल हक़ाइक़ दिखाएं। लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है इस बात का कि जो मैंने 12-13 साल काम किया है वो मैंने ज़ाया किया है। मुझे बहुत देर पहले अपना काम कर लेना चाहिए। कई इंटरव्यू मैंने ज़िंदगी में दिए हैं, लेकिन आज इंटरव्यू देते हुए मेरा जो है ना, मेरी ज़बान कांपी है। मेरा ज़बान जो है ना वो कांपते हुए इजहार मैं कर रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना खस्ता हाली, मतलब अपनी ही पोजीशन को जो है ना इस तरह से मुश्किल से डिफेंड कर सकूँगा कि मैं उसी मीडिया जिसकी खातिर मैं लड़ता रहा हूँ, जो असल वर्कर है, जो असल सहाफ़ी है, वो इस वक्त अपने घर के मामला चलाने के लिए बहुत परेशान है। ना मीडिया के मालिकान ने हमारा को हाल पूछा, पुरसाना हाल हमारा नहीं, और ना ही जो हमारे वो बड़े अफसर हैं, ना ही को दायरे के, ना ही को हमारे प्रेस क्लब के जवान, ना ही को हमारे वो जो एसोसिएशन बनी हुई है, जो बड़ी बड़ी तंजीमें बना के लोग बैठे हुए हैं। यूनियन का मकसद ये है कि हमें इस्तेमाल करके सिर्फ अपने पैसे बटोरना, अपने मकासद पूरे करना और जो है हमें ब्लैकमेल करना, बस इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। जब बुरा वक्त आता है सहाफ़ी पे तो कोई साथ खड़ा नहीं होता। यूनियनों ने हमें जान नहीं छुड़वानी थी, यूट्यूब ने छुड़वा दी है, डिजिटल मीडिया ने छुड़वा दिया है, गूगल वालों ने, यूट्यूब, फेसबुक वालों ने, इंस्टा वालों ने, टिकटॉक, ये छुड़वा, इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई आप खुद बन सकते हो, आप कंटेंट बना सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। तो भाई ये चैनल, आप उनका भी वही चैनल यूट्यूब पे उसी तरह ही आता है, आपका भी उसी तरह ही आता है। मालकान ने वर्कर्स को निकाला, लेकिन ये भी कोई तरीकाकार नहीं है कि एक बंदा सुबह घर से काम करने जाता है और शाम को जब वो घर जाने लगता है उसको लेटर पकड़ा दिया जाता है, ना उसको सैलरी दी गई, ना उसको पिछली सैलरी दी गई। एटलीस्ट वर्कर की जॉब का कोई तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हम कोई ऐसी इफेक्टिव यूनियन बनाने में नाकाम रहे जो यानी एक दूसरे के यानी हम एक दूसरे की यानी जायज़ और हलाल मफादात का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, तो सच्ची बात है कि हम यहाँ कोई ऐसी मतलब बना ही नहीं सके। अगर मालिकान और गवर्नमेंट मेरे हिसाब से और इनके दरमियान, वर्कर्स के दरमियान ये तंजीमें ना हो तो शायद किसी तरह कुछ चीज़ बेहतर होती। मैंने जो 17 साल ज़ाया किए हैं ना, काश के वो 17 साल पहले मैंने ये जनरल स्टोर खोल के मैं बैठा होता, ये किराना स्टोर खोल के मैं बैठा होता, तो आज मेरे बच्चे वो दर भटक न रहे होते। मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए आगे हंस के कुछ ना कुछ उनके लिए मैनेज कर पाता। मैंने बहुत मीडिया के लिए मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है मैंने मीडिया में रह के। अगर मैं ये इतना टाइम इसको देता है तो आज ये मेरी अपनी बहुत बड़ी वर्कशॉप होती और मेरे बच्चे जो है ना आज बिलबिला नहीं होते, मैं खुशहाल होता, इससे ज़्यादा खुशहाल। मैं तकरीबन कोई 7-8 साल का अरसा जिसने मीडिया के अंदर गुजारा है, मैं इस वक्त मिड कैरियर में सोचने पे मजबूर हो चुका हूँ कि यार मैंने 7-8 साल ज़िंदगी के कहीं और गुजारे होते तो शायद आज मैं किसी और पोजीशन पे होता।
शायद इस मेडिकल का साइंस में ही अगर मैंने किया होता तो आज मैं किसी और पोजीशन पे बैठा होता। इमरान खान एक बहुत ऐसा शख्स है, ऐसा लीडर पाया गया है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क उसने किया है। इस मीडिया का बेड़ा गर्क करने वाला इमरान खान है और उसकी जो टीमें। जब इमरान खान आया, इससे पहले आप मीडिया की सूरत हाल देख लें, कितना खुशहाल मीडिया था, कभी कोई किसी को दायरे से नहीं निकालता था। जब से ये आया है तब से मीडिया पे सवाल आया है। मुशर्रफ लेकर आया था मीडिया को और मीडिया मुशर्रफ को खा गया। नवाज शरीफ ने अदलिया को आज़ाद किया, अदलिया ने नवाज शरीफ को खा लिया। इसी इमरान खान को हम लोग लेकर आए थे, हम इसी के वोटर और सपोर्टर थे और हम इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं। मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा। और इमरान खान मीडिया को सबसे पहले खा गया, ये हकीकत है। जिस पे एहसान करते हैं उसके शर से बचना चाहिए, और इमरान खान ने वाकई मीडिया को खा गया। और कंट्रोल पॉलिसी जिसकी थी, मतलब जैसे जहाँ से पॉलिसी थी कंट्रोल करना था, कर दिया उन्होंने। बिल्कुल जी, मैं इस गवर्नमेंट को इसका ब्लेम दूंगा कि आज हमारी मीडिया इंडस्ट्री के जो भी हालात हैं, इसका 110% क्रेडिट जो है ना वो इस पीटीआई गवर्नमेंट को जाता है। पिछले 5-6 साल में, 7 साल में जो इदारे खुले हैं वो उनका पर्पस हम सबको पता है, वो ये नहीं था कि जर्नलिज्म को फरोग देना है और सहाफ़ियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। वो एक बिजनेस के लिए आए थे। अरबों रुपया कमाया और उसकी उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने इतना पैसा कमाया, वो कहाँ है। अगर उनके प्रॉफिट को ज़रा सी भी ज़रब लगी तो उन्होंने उसको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया वर्कर्स के ऊपर, वर्कर्स को निकाल दिया। कैमरा मैन है मिसाल के तौर पर, उसको 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, या हमारा एक टेक्नीशियन है, चंद हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसको नौकरी से निकाल दिया। तो बाकी जो उसके साथी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता जो ये एहतजाज करके काम छोड़ दे। यानी यूनियन अगर कोई ग्रुप होगा तो बाकी वर्कर्स ये कहेंगे कि फिर हम आपका चैनल चलाने से इनकार करते हैं, जब तक आप इस ज्यादती को रिड्रेस करें, वरना आपकी ट्रांसमिशन बंद होगी। हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम कोई चीज लाइव नहीं करेंगे, हम एडिटिंग नहीं करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। आप अगर ये करेंगे तो आपको फिर उसका रिटर्न मिलेगा। तारीख के मैदान में उसी कौम के पास हकूक हैं, यानी कौम की मतलब मुरादी के उसी कौम की वर्किंग क्लास के पास हकूक हैं जिसने तारीख के मैदान में लड़ाई लड़ी। मीडिया मालकान बड़े मजबूत हैं और पीपीए में वो सारे एक हैं, जो जिनके आपको बज़ाहिर इख्तिलाफ़ात नज़र आते हैं चैनल्स के आपस में, लेकिन जब मुश्तरका मफादात की बात आती है वो सारे एक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। चाहे वो जियो है, चाहे वो ARY है, चाहे वो दुनिया है, वो सारे एक हैं, इकट्ठे हैं। और अगर कोई टुकड़ों में बिखरा हुआ है तो वो हमारी यूनियंस हैं, हम वर्कर्स हैं। कोसने से बेहतर है हम लोग अपने आप को अपग्रेड करें। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये जो आप कह रहे थे कि हमारी दोस्त है, मैं खुद देखा है, मिला हूं, मैं काम किया हुआ हीरे के साथ और दूसरे 2-3 दोस्तों के साथ। मजबूरन क्या करें, वो उनको तो बच्चों का पेट पालना है ना। अफसोस तकलीफ इस चीज की होती है सलमान की, ये हमने क्या किया, हम सीनियर्स ने क्या किया, या जो यूनियन जो जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने क्या किया। वो हंसते हैं